Hello students, so welcome to the solutions of JEE Main Test 92 uploaded on NTA Abhyas app. Students, this was again an average level paper, relatively in fact easier paper. तो again easy questions का count जो है वो काफी ज़्यादा है इसमें. Tough questions, I just found two questions to be moderately tough. I must not say tough here. Moderately tough questions थे जिसमें sixth question जो है it's a routine profile, though it involves a good integration there. Then overall the paper I would regard it as easy, or we can say medium minus. So score around 65, 70 and above will be taken as a good score here, right? So starting with the discussion, right, the first question. In the spectrum of hydrogen atom, the ratio of the longest wavelength in Lyman and the longest wavelength in Balmer. Now we know that longest wavelength means the smallest energy. So if we write let's say for Lyman के लिए जो आपका minimum energy होगा, that will be a jump from 2 to 1, right? This is 1 by 1 square minus 1 by 2 square. And similarly for Balmer, if we see, so again the longest wavelength, matlab the smallest energy, so that jump will be from 3 to 2. So that's 1 by 2 square minus 1 by 3 square. Right? When overall these equations, these results are simplified, we directly get lambda Lyman upon lambda Balmer. That value it comes out as 5 by 27. So a routine question, a very straightforward question from atomic structure. Next question पे चलते हैं. Right. Two blocks A and B of mass m and 2m are connected by a massless spring of force constant K and are placed on a smooth horizontal plane, right? Non-conservative force is absent hai. The spring is stretched by an amount x and then released, and relative velocity nikalni hai when the spring comes to its natural length. Now this situation is effectively, it can be solved by the concept of CM frame. So we can see that initially the spring is extended. तो उसके अंदर potential energy जो stored है, that is half kx square. And when the spring returns to its natural length, तो complete potential energy वो kinetic energy में convert हुआ होगा. But वो kinetic energy हम यहाँ पे CM frame में अगर लिखें, of course half kx square जो loss in potential energy है, that is basically gained by the kinetic energy in CM frame. So that's half mu v relative square, right? So half ये cancel हो जाएगा. This is kx square. Mu is the reduced mass, which is m1 m2 upon m1 plus m2, and that into v relative square. हमें ये v relative ही find out करना है. तो यहाँ से we can get this v relative as, I think it should be 3kx square upon 2m under root. तो अकॉर्डिंगली ये x बाहर आ जाएगा 3k upon 2m times x, राइट? रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऑप्शन ए में हमें मिल रही है. तो CM फ्रेम वाला अगर क्लिक होता है आपको पॉइंट, तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन. अच्छा, another option in that question, it can be the application of momentum conservation followed by energy conservation. वो दोनों चीजें अप्लाई करें तो भी आंसर आ जाएगा, but better approach is of course the CM frame. Next question. A mass of 2 kg is whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed 5 revolutions per minute, keeping the radius constant if we want the tension to be doubled. राइट, तो अब ऐसे केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन लग रहा होगा सेंटर की तरफ, दैट कैन बी इक्वेटेड टू m ओमेगा स्क्वायर r, t इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r. अब यहां पे द क्वेश्चन सेज दैट द मास इज ऑफ कोर्स द सेम, द रेडियस इज कांस्टेंट, इट मींस दैट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर. तो इफ टेंशन हैज टू बी डबल्ड, मतलब टी डैश अगर हमें ट्वाइस ऑफ टी नॉट करना है, तो टेंशन डबल तभी होगा जब एंगुलर स्पीड हम रूट टू टाइम्स कर दें, ऑफ कोर्स बिकॉज वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. सो दैट्स रूट टू टाइम्स द इनिशियल वैल्यू व्हिच वाज 5 रिवॉल्यूशंस पर मिनट. तो ये अपन 1.414 into 5 कर रहे हैं, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 7 rpm. सो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two bulbs consume the same power when operated at 200 and 300 volt respectively when these bulbs are connected in series. All right. तो ये हमें rated values given है, right? Specified values हैं, specifications हैं. तो specifications के लिए we know that we apply the formula P equals to V square by R. है ना? ये हम rated values के लिए apply कर रहे हैं. अब since it says they consume same power, P का value same है, इसका मतलब V square जो है that is directly proportional to R. सो अकॉर्डिंगली इन दोनों के रेजिस्टेंस रेशियो अगर हम निकाल लें, तो दैट इज v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इस प्रोपोर्शनलिटी से. तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इट विल बी 4 by 9, राइट? बिकॉज वो 200 और 300 इनकी रेटेड वोल्टेजेस गिवन है. नाउ अब इन्हें हमने सर्किट में कनेक्ट किया ऑफ वोल्टेज सोर्स 400.
400 के अक्रॉस हमने इनको कनेक्ट किया है सीरीज में। नाउ सिंस दे आर इन सीरीज, तो ऐसे केस में जो पावर वैल्यू होगी दैट कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर आर, बिकॉज सीरीज में है तो दोनों में करंट की वैल्यू सेम जाएगी। इट मीन्स दैट व्हेन दे आर इन सीरीज द पावर वैल्यू, द रन टाइम पावर वैल्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू आर। तो पावर का रेशियो हमें निकालना है, तो दैट P1 अपॉन P2 will be equals to R1 upon R2, and that value again it comes out as 4/9 जो अपन ने rated value से निकाला था। The answer it will be 4/9. So easy question था from current electricity. Right, next. Two coils having a mutual inductance given है, current changes in the first coil according to the equation and maximum value of EMF. All right, simple है। देखिए, the magnitude of EMF induced mutual inductance के context में it is m di by dt, the magnitude। तो m तो हो जाएगा 0.05 di by dt। if this current function is differentiated with respect to time, तो we have I naught omega cos omega t, right? This cos omega t का maximum value it is 1। तो EMF का maximum value जो होगा that is 0.005, sorry, ये 0.005 होगा। That multiplied by this I naught is 10, and that multiplied by omega is 100 pi। तो ये जो टर्म है यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये अपन मल्टीप्लाई कर लें, दैट कम्स आउट एज 5 पाई वोल्ट्स। तो ये आपका बी ऑप्शन में 5 पाई वोल्ट्स मिल रहा है। सो अगेन इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, राइट, लेट देयर बी अ स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी वेरिएबल हमें गिवन है, एंड अंदर बाहर जो है, मतलब सरफेस के बाहर डेंसिटी इज ऑफ कोर्स 0, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द ओरिजिन। सो इट्स अ रूटीन प्रोफाइल, दो इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन एंड ऑल, बट इट्स अ रूटीन प्रोफाइल जो आप पहले सॉल्व कर चुके होंगे। तो ऐसे केसेस में ऑफ कोर्स हम यूजुअली, सिंस वेरिएबल डेंसिटी होती है, तो एक जनरल डिस्टेंस r पे हम जानते हैं, और वहां पे जाके हम dr विड्थ का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं। दैट्स द यूजुअल अप्रोच। तो जो डी आर विड्थ का हम एलिमेंट, स्फेरिकल एलिमेंट लेते हैं, उसका जो वॉल्यूम होता है डीवी, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, दैट्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। अच्छा, उस डीवी पर जो स्मॉल चार्ज डी क्यू होगा, दैट डी क्यू इज ऑफकोर्स रो टाइम्स डीवी। तो रो का हमें फंक्शन दे रखा है रो नॉट टाइम्स आर बाय आर, तो दिस इज रो नॉट बाय आर। स्मॉल आर यहां मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज 4 पाई आर क्यूब डी आर। तो दिस इज द चार्ज इन दिस स्मॉल एलिमेंट जो हम शेड कर रहे हैं, इस स्मॉल एलिमेंट में ये चार्ज है। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो स्मॉल आर डिस्टेंस में निकालना है। तो फॉर ऑल स्फेरिकल सिमेट्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय के क्यू एनक्लोज्ड बाय आर स्क्वायर, right? This q enclosed is basically the charge enclosed within that Gaussian surface जो हम small r radius का बनाएंगे। तो कुल मिला के क्वेश्चन जो है वो बेसिकली क्यू एनक्लोज्ड पर फोकस्ड है। तो क्यू एनक्लोज्ड हमें स्मॉल आर के अंदर अंदर क्यू एनक्लोज्ड निकालना है। हमने स्मॉल डी क्यू तो निकाल लिया है, तो इंटीग्रेटिंग दिस रो नॉट बाय कैपिटल आर, 4 पाई आर क्यूब डी आर, ये डी क्यू था, इसको हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम जीरो टू स्मॉल आर, तो सेंटर से स्मॉल आर के अंदर अंदर कितना चार्ज है वो इवेल्युएट हो जाएगा। तो उस इवेल्युएशन में दिस चार्ज इट कम्स आउट एज रो नॉट स्मॉल आर टू द पावर 4, 4 एक फैक्टर कैंसिल हो गया, पाई अपॉन कैपिटल आर, ये क्यू एनक्लोज्ड आ गया। इसको हम फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में प्लेस करें तो k की वैल्यू इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड हमने निकाला है, दैट इज रो r टू द पावर 4 पाई अपॉन कैपिटल आर, एंड एक r स्क्वायर और है, राइट? इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपका पाई कैंसिल हो रहा है, एक r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एंड वी हैव द रिजल्ट एज रो नॉट r स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, राइट, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो जैसा मैंने कहा, इट्स अ रूटीन प्रोफाइल जो आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, बट डेफिनेटली आपको ओवरऑल प्रोसेस बहुत स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bar magnet of length 10, pole strength given, so it's a repeated question I think. Couple find out करना है, right? तो torque जो होगा, we know that torque is mb sin theta, where m is the magnetic moment, right? Magnetic moment जो है, that is a pole strength multiplied by length. Length is 0.1 meter. Magnetic field is 50 Tesla and sin 60 is root 3 by 2. तो उसके हिसाब से चले तो आपका आंसर जो आ रहा है, that is 5 root 3 Newton meter. So it's a straightforward formula putting question from magnetism. Right, next. The value of gravitational acceleration g
at a height h above the earth surface is g by 4, right? तो we know that let's say अगर हम h height surface के ऊपर गए तो वहां जो g का वैल्यू होगा that is gm upon r plus h का whole square, and this is 1/4 of the value at the surface. The question says surface पे gm by r square होता है और वो 1/4 है उस पर्टिकुलर हाइट पे. इसमें कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करें तो वी हैव r plus h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, which gives you r plus h equals 2r. तो यहां से h की वैल्यू जो है वो r के इक्वल आ रही है गिवन इन ऑप्शन ए. सो अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेविटेशन. नेक्स्ट, right, Newton's law of cooling. A cup of tea cools from 80 to 1640 seconds. Ambient temperature given है और 60 to 50 में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है. तो अगेन डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करें. So we have 80 minus 60 upon the time which is 40, that is equals to k times the average. 80 60 का average is 70 minus the ambient temperature, it is 30. That's the first equation. Then second में हमें 60 से 50 की कूलिंग करनी है तो 60 minus 50 upon the time taken, let's say it's t, equals k times 60 and 50 का average is 55 minus ambient temperature is 30. इन दोनों को हम डिवाइड कर लें तो डिवाइड करने पे आई थिंक वी आर गेटिंग t by 20 एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे वी हैव 40 अपॉन 25, सो दैट्स 8 by 5. तो यहां से t का वैल्यू जो आएगा आई गेस इट इज 32 सेकंड्स, राइट? तो 32 सेकंड्स आपका ऑप्शन सी में आ रहा है. तो अगेन जस्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना था, जस्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, राइट? नेक्स्ट, fine. Next question it says a particle of charge per unit mass, right? Charge per unit mass मतलब q by m की वैल्यू दे रखी है अल्फा, released from origin with velocity v naught I cap. मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है एक सर्टेन रीजन तक है, उसके आगे नहीं है. x कोऑर्डिनेट फॉर टाइम ग्रेटर देन दिस वैल्यू वुड बी. तो अब जब इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया, आई कैप डायरेक्शन में हमने उसको थ्रो किया और के कैप में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है. तो सिंस वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर तो ये सर्कुलर ट्रैक पे सर्कुलर पाथ में तो इनिशियली जाएगा. अब इसका हम टाइम पीरियड अगर निकाल लें जो इसका मोशन है दैट्स 2 पाई m by qb. अब वी आर गिवन चार्ज पर यूनिट मास, राइट? q by m हमें अल्फा दे रखा है तो ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन अल्फा b नॉट, राइट? ये इसका टाइम पीरियड है जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में है, उस टाइम उस सर्कुलर मोशन का ये टाइम पीरियड है. अच्छा, हमें जो ये टाइम दे रखा है आप देखें, दिस इज पाई अपॉन 3 बी नॉट अल्फा. तो ये जो टाइम हमें गिवन है जिस लिमिटिंग टाइम, ये आप देखेंगे t by 6 है. ये कंप्लीट टाइम का 1/6 करें ना तो ये वो टाइम हमें दे रखा है. तो अगर ये सिनारियो है कि अगर हमने एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, ये आपका अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है एक पर्टिकुलर रीजन में, और हमने आई कैप में अगर पार्टिकल को वेलोसिटी दिया, मतलब एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल को अगर हमने प्रोजेक्ट किया है ऐसे, ठीक है, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में यू कैन सी दैट ये मैग्नेटिक फील्ड में t by 6 टाइम के लिए ही रह पाएगा. अच्छा, वन मोर थिंग, रेडियस अगर हम इसका निकाल लें तो रेडियस जो है दैट इज एम वी अपॉन क्यू बी. अगेन q by m जो है वो अल्फा है तो वी हैव v अपॉन अल्फा बी नॉट, दिस इज द रेडियस. तो ये रेडियस है और ये जो हमें x कोऑर्डिनेट दे रखा है दिस इज √3/2, मतलब इस रेडियस से कम है. तो ऐसे केस में दिस पार्टिकल विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द सर्कल एंड विल एग्जिट द फील्ड मिडवे. तो ये फील्ड को एग्जिट कर जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, यहां पे है ना, यहां से ये फील्ड कहीं इस डायरेक्शन में ये एग्जिट कर जाएगा. हमें फाइंड आउट करना है द x कोऑर्डिनेट पाई अपॉन 3 बी नॉट अल्फा टाइम बाद. तो अब ऐसे केस में वी नो दैट यहां पे अगर अपन इसका सेंटर लोकेट कर लें, राइट, इस जगह इसका सेंटर होगा. यहां से जब ये लीव कर रहा है, लेट्स से इसको अपन ने यहां से ज्वाइन किया, दिस इज द रेडियस. इस जगह जब ये लीव करेगा तो एक इस थीटा एंगल पे लीव करेगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज आल्सो द सेम थीटा, राइट? ये डिस्टेंस हमें d गिवन है, लेट्स से ये हमें x गिवन है ऑलरेडी, √3 v नॉट अपॉन 2 b नॉट अल्फा, दिस इज √3 v नॉट अपॉन 2 b नॉट अल्फा, ठीक है. एंड रेडियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो उसके हिसाब से इफ वी अप्लाई दिस साइन थीटा एज दिस x अपॉन r, तो यहां से थीटा का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज 60 डिग्री. तो इस 60 डिग्री एंगल पे इट विल लीव दिस सर्कल, राइट? अब जब ये यहां से लीव करेगा और हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालने को कहा गया है पार्टिकल का,
तो आफ्टर इट लीव्स द component of velocity that will work to increase the x coordinate will be v naught cos theta, है ना. v naught cos 60 will be helpful, so that's v naught by 2. तो ये यहां v naught स्पीड से निकला, बट x डायरेक्शन में अब v naught cos theta कंपोनेंट ही उसको आगे मूव कराना है, y का मोशन हमें पूछा ही नहीं है. तो अब ऐसे केस में the x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, आप देखिए यहां ओरिजिन से शुरू हुआ था इस जगह से, और ये जो x डिस्टेंस है ये तो उसको ट्रैवल करना ही है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो √3 v नॉट अपॉन 2 b नॉट अल्फा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल किया, प्लस अब t माइनस टी बाय 6, बिकॉज t बाय 6 ड्यूरेशन तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो कोई भी जनरल टाइम t में t बाय 6 टाइम तो फील्ड में चला, और t माइनस टी बाय 6 टाइम वो फील्ड के बाहर चला है. फील्ड के बाहर कितने कंपोनेंट से चला है x डायरेक्शन में, दैट्स v नॉट cos 60. अब यहां पे अपन वो वैल्यूज टाइम पीरियड का वैल्यू वगैरह प्लेस करें तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन सी जो है वो परफेक्ट मैच निकलेगा. इट्स जस्ट दैट कि उसका जो डिस्टेंस है x फील्ड रीजन वो रेडियस से कम था, तो ये पार्टिकल एक पर्टिकुलर एंगल पे फील्ड से एग्जिट लेगा. वो हमें एंगल निकालना होता है, तो वो हमने थीटा 60 डिग्री निकाल लिया, इट्स अ रूटीन कैलकुलेशन. फिर देखा फील्ड को एग्जिट करने के बाद सिर्फ x कंपोनेंट है जो उसको आगे चलाएगा, बिकॉज x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है. तो जनरल टाइम t में से t बाय 6 टाइम तो उसने फील्ड में पास किया, और रिमेनिंग टाइम मतलब t माइनस टी बाय 6 वो जीरो फील्ड वाले रीजन में, मतलब आउटसाइड द फील्ड वाले रीजन में x डायरेक्शन में इस कंपोनेंट से ट्रैवल कर रहा है. तो उसका फाइनल x कोऑर्डिनेट विल बी द फील्ड रीजन प्लस एडिशनल डिस्टेंस जो उसने x डायरेक्शन में ट्रैवल किया है, वो ऑप्शन सी में मिल रहा है. सो अ गुड क्वेश्चन, अ वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. Okay, a ball is projected from point A with a velocity 10 meter per second perpendicular to the inclined plane as shown in the figure. Range of the ball on the inclined plane is, right. In such cases we know that अगर मैं inclined plane के along x direction मान लूं और inclined plane के perpendicular नया y direction बना लें, तो ऐसे केस में आपका ax जो आता है acceleration x direction, that's g sin theta, g sin 30, और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में जो आता है दैट इज g cos थीटा, g cos 30, ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा वो. तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, इफ वी गो बाय द अर्लियर रिजल्ट्स ऑफ यूजुअल प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज 2uy अपॉन ay. जो यूजुअल प्रोजेक्टाइल मोशन में 2uy बाय g हो जाता था, यहां पे इट विल बी 2uy अपॉन ay. सो दैट्स 2 टाइम्स uy, बिकॉज सारा वेलोसिटी हमें y में ही देना है, तो 2uy तो हो जाएगा आपका 10, and ay is g cos 30, so this is 10 into cos 30 is √3 by 2, so accordingly your result it is 4 by √3 seconds. That's the time of flight. Now range हमें निकालना है, that means जो inclined plane के along horizontal displacement है वो चाहिए. तो हमने incline के along उसको कोई velocity component initially नहीं दिया था. delta x is ux plus half ax कितना है g sin 30, तो g by 2 half ax into t square, that's 4 by √3 का square. So accordingly this is 10 by 4 multiplied by this is 16 upon 3. So I guess that result is 40 by 3 meters, right? So 40 by 3 meters is the correct answer. So we have just applied time of flight situation and then range के लिए हमने second equation x direction में मतलब along the incline apply किया है. So it's an easy question here. Next. Using the following data, mass of hydrogen atom given, neutron का given है, nitrogen atom का given है, और हमें binding energy निकालनी है. So again, straightforward question. We know that binding energy जो ऐसे cases में आता है, that is the mass defect multiplied by c square, right? तो अब इस scenario में we can write it as mass defect will be this z times the mass of proton plus a माइनस जेड टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो इतने तो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, जेड काउंट, और a माइनस जेड मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इतने हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, माइनस द मास ऑफ द नाइट्रोजन एटम, तो ये मास डिफेक्ट आ गया, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर. तो ये मैंने कैलकुलेशन किया है, इस को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली योर आंसर इट विल बी 104.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जस्ट कैलकुलेशन है, रिजल्ट आप ऑलरेडी जानते हो, इसमें डेटा सब्स्टिट्यूट करके आप अप्रोक्सीमेटली 104 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर कर सकते हैं. तो न्यूक्लियर फिजिक्स पे बेस्ड, बाइंडिंग एनर्जी पे बेस्ड एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, राइट. नेक्स्ट देखते हैं.
It says a U-tube of uniform bore of cross-sectional area A is set up vertically with open ends. A liquid of mass m density d is poured into it, right. तो again a standard problem. We know that ऐसे cases में जो time period होता है SHM का, that's 2 pi under root L by G. ये prove करने की हमें need नहीं है, it's 2 pi under root L by G. And this L is the length of column in one limb. मतलब जो वन आर्म है, उस ट्यूब का जो वन आर्म है, उस एक आर्म में पानी का कॉलम कितने लेंथ का है वो L होता है इसमें, है ना. ये टोटल नहीं होता है, जस्ट द लेवल ऑफ लिक्विड इन वन लिम. ऑलराइट, तो यहां पे वी आर गिवन कि लिक्विड जो है वो टोटल m मास का है. तो इसमें अगर अपन ये टोटल m मास फ्रेम करने की कोशिश करें तो दैट इज एरिया इनटू द टोटल लेंथ इज 2L. तो L लेंथ राइट साइड में, L लेफ्ट वाले पार्ट में आ रहा है, तो ऐसे केस में 2L उसका टोटल लेंथ हो गया, इनटू एरिया किया, दैट्स टोटल वॉल्यूम. फिर वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मास बन जाएगा. तो यहां से अपन L का वैल्यू निकाल लें तो ये आपका m/2AD आएगा, विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड देयर. तो यहां से टाइम पीरियड का वैल्यू इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L का वैल्यू अपन प्लेस करें तो ये m/2ADG ये फैक्टर आ रहा है, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी. तो प्रोवाइडेड इफ यू कैन रिकॉल दिस रिजल्ट ऑफ SHM, टाइम पीरियड वाला रिजल्ट अगर डायरेक्टली आपको ध्यान है तो प्रोवाइडेड दैट रिजल्ट इज यू आर एबल टू रिकॉल, देन इट इज एन इजी क्वेश्चन. Right, next. The number of photons emitted per second by a 10-watt sodium vapor lamp, assuming that 90% of the consumed energy is converted to light. तो जो convert हो रहा है वो 90% है. 90% of what? 90% of 10 watt. तो of course that will be 9 watt. तो energy per unit time will be 9 joules. तो ऐसे केस में number of photons per second हमें find out करना है, right? The number of photons per second is the total energy emitted, that is power into time, divided by the energy of one photon, which is hc by lambda. So accordingly power तो आपका 9 है, time is 1 second. hc by lambda में हमें standard units में ही value रखनी होंगी, तो h is 6.63 into 10 to the power minus 34. c का वैल्यू 3 into 10 to the power 8 रखें, अपॉन लैम्डा जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, so that's 590 into 10 to the power minus 9 नैनोमीटर्स में है. तो यहां से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो दिस वैल्यू इट कम्स आउट एज 266.9 into 10 to the power 17, और जब इसको अपने ऑप्शंस के हिसाब से चलाएं इट कम्स आउट एज 0.267 into 10 to the power 20 फोटॉन्स, जो ऑप्शन सी में आपको मिल जाता है. सो अगेन कैलकुलेशन थोड़ा डिमांडिंग है, बट अगर आप रीजनेबल अप्रोक्सीमेशंस करते हैं तो ऑफ कोर्स आप 10 टू द पावर को देख के ही अपना रिजल्ट प्रॉपरली निकाल सकते हैं. तो ओवरऑल एन इजी क्वेश्चन अगेन. नेक्स्ट. इन अ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट द एयर इज अंडर अ प्रेशर P1. सोप बबल ऑफ रेडियस R लाइज इनसाइड द सिलेंडर. ऑलराइट, सोप बबल अंदर है, सरफेस टेंशन गिवन है, रेडियस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, फाइंड द प्रेशर P2 टू विच एयर शुड बी कंप्रेस्ड आइसोथर्मली. ऑलराइट, we know that across a soap bubble the pressure difference P inside minus P outside, it is equals to 4S by R. S is the surface tension, or we can write it as 4T by R, जो भी आपको सूट करता है. यहां ये surface tension T बोल रहा है तो हम T लिख देते हैं. It means that अंदर जो pressure होगा that is outside pressure plus 4T by R. अब since it is an isothermal process, तो अगर मैं soap bubble के अंदर जो डिटेल्स हैं उसके लिए बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दूं, सिंस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 कैन बी अप्लाइड. तो इनिशियली द प्रेशर इनसाइड दैट सोप बबल इट विल बी P1, जैसे मैंने लिखा है, इट इज आउटसाइड प्लस 4T by R. तो पहले सिलेंडर में प्रेशर कितना था? P1. सिलेंडर का प्रेशर मतलब सोप बबल का सराउंडिंग, तो P1 प्लस 4T by R. This is the pressure inside the bubble initially, multiplied by volume of the bubble was 4 by 3 pi R cube, and that is equals to finally cylinder के अंदर pressure P2 है, तो bubble के अंदर कितना होगा? P2 plus 4T by R, because वो excess pressure वाली बात हम अप्लाई कर रहे हैं, but radius आधा कर दिया है ना. यहाँ पे second case में the radius is half of the initial value, तो accordingly it will be written as 4T upon R by 2, and that multiplied by final volume which is 4 by 3 pi R by 2 का cube, right?
अब इसमें अपन ओवरऑल मैनेज करें तो वी हैव P1 प्लस 4t बाय आर इक्वल्स P2 प्लस 8t बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 3 पाई वगैरह सारे फैक्टर चले गए, दिस इज 1 बाय 8। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, तो वी हैव P2 इक्वल्स टू 8P1 प्लस 32 माइनस 8 24t बाय आर विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो अगेन वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन बट नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट हमने P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 अप्लाई किया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A narrow parallel beam of light is incident on a transparent sphere of refractive index n. If the beam finally gets focused at a point distance 2r from the center, then find n. अब ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा लंबा चलेगा। तो सिनारियो ऐसा है कि ये हमने एक मान लीजिए बबल या जो भी ये सिनारियो हमें गिवन है वो हमने कंसिडर किया। इट सेज ट्रांसपेरेंट स्फीयर, राइट। तो एक स्फीयर पे हमने ये इंसिडेंट किया, तो ये अगर अपन एक स्फीयर इमेजिन कर लें और इस पे हमने पैरेलल रेज यहां से इंसिडेंट किए हैं, तो ये जो पैरेलल रेज हैं ये किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होने थे। ऑफ कोर्स फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद तो यहां कन्वर्जिंग होना था, बट यहां सेकंड रिफ्रैक्शन भी हुआ तो इधर कहीं ये कन्वर्ज होके इधर मिल रहे हैं, राइट। तो दिस इज द सिनेरियो। तो अब ऐसे केस में if we apply let's say our equation refraction at spherical surface, तो अगर first refraction को हम देखें तो that can be written as n2 by v1, of course this is not the final image, और ये हम first refraction मतलब left face पे जो refraction हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो n2 by v1 minus n1 by u is infinity because parallel rays है, and that is equals to n2 minus n1 upon r। तो इसको अब जो अपन सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट इमेज बनना चाहिए, मतलब यहां पे जो आपका फर्स्ट इमेज बनना चाहिए उसका लेफ्ट सरफेस से जो डिस्टेंस है, मतलब दिस वन, दिस कंप्लीट डिस्टेंस, दिस इज v1। तो ये जो v1 का वैल्यू यहां से आ रहा है, दिस इज nr अपॉन n माइनस वन, राइट। ये v1 आ गया। अब ये जो इमेज है ये सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो अगर हम सेकंड सरफेस की बात करें, बिकॉज अब सेकंड रिफ्रैक्शन होना है, तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा दैट इज ऑफ कोर्स v1 माइनस 2r, बिकॉज ये v1 तो लेफ्ट सरफेस से मेजर किया था, उसमें से डायमीटर हमें माइनस करना है। तो v1 माइनस 2r विच इज nr अपॉन n माइनस 1 माइनस 2r, इसमें अपन एलसीएम ले लें तो लास्ट में आपका ये u का वैल्यू जो बचने वाला है, दैट u का वैल्यू कम्स आउट एज r टाइम्स 2, एक्सक्यूज मी, r टाइम्स 2 माइनस n अपॉन n माइनस 1, राइट। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया फॉर द राइट फेस। So again we will apply the equation refraction at the spherical surface, that is n2 by v। अब जो फाइनल इमेज है, the question says वो सेंटर से 2 times the radius पे बन रही है। सेंटर से ट्वाइस ऑफ रेडियस पे मतलब सरफेस से r पे है, तो 1 by r n2 by v माइनस n1 by u की जगह मुझे ये प्लेस करना पड़ेगा, दिस r टाइम्स 2 minus n divided by n minus 1, and that is equals to n2 minus n1 upon radius of curvature, तो माइनस r है। तो इसको जब अपन कंप्लीट सॉल्व करें, r तो आपका कैंसिल हो रहा है ना, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर्स करके आप जब सॉल्व करोगे दैट कैलकुलेशन कैन बी बाईपास्ड, आप अपने लेवल पे कर सकते हो। तो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n विल कम आउट टू बी 4/3। So this was a very good problem here because ये variables में had it been in values ना, तो values में अगर होता तो this calculation would have been relatively easier, but since वो variables में चल रहा है तो calculation थोड़ा सा challenging बन गया, but otherwise again profile उतना difficult नहीं है, but calculations is they are making it difficult, right? Next question. The moment of inertia of a door of mass m, length 2l, width l above the longer side, right? ये तो straightforward question है। सेज की लेंथ जो है वो 12 है, तो ये वाला पोर्शन हमें 2l गिवन है, ये पोर्शन हमें l गिवन है, और हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जस्ट रॉड वाला सिनेरियो ही हम लगा सकते हैं बिकॉज एंड के अबाउट निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी स्ट्रेट अवे ml स्क्वायर बाय 3। तो इट्स नॉट एनीथिंग स्पेशल इन दिस क्वेश्चन, इट्स जस्ट ml स्क्वायर बाय 3। सेंट्रल एक्सिस होता ना, अगर ये वाला एक्सिस होता तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड हैव बीन ml स्क्वायर बाय 12। तो आई थिंक आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि ये ml स्क्वायर बाय 12 होगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहां पे शिफ्ट करेंगे तो विल बी ml स्क्वायर बाय 3।
So easy question. Next. A steel ball of mass m1 moving with velocity 50 collides with another ball of mass, right, during collision. Energy lost, temperature changes T1, T2, right? The kinetic energy is lost and their internal energies change equally. तो इक्वली अगर इंटरनल एनर्जीज चेंज हुई है, मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है वो दोनों को इक्वल अमाउंट में मिला है. तो ऐसे केस में वी कैन राइट दैट m1s डेल्टा t1, बिकॉज दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल एज इन दे आर मेड ऑफ स्टील, आई थिंक सेम मटेरियल, हाँ स्टील बॉल. तो m1s डेल्टा t1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m2s डेल्टा t2, राइट. तो m1 का वैल्यू वी आर गिवन, इट इज 1 किलोग्राम. ठीक है, T1 और T2 भी हमें यहां पे देखने होंगे. तो दिस इज m1 इज 1000 ग्राम. देन चेंज इन टेम्परेचर इज T1 हियर एंड दिस इज 200 ग्राम एंड द चेंज इन टेम्परेचर इज T2. तो यहां से आपका T2 का वैल्यू जो आ रहा है दिस इज 5 टाइम्स T1. तो हम ये कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जगह वी कैन जस्ट सी दैट जो सेकेंड वाले में राइज इन टेम्परेचर है वो फर्स्ट वाले का 5 टाइम्स है. तो इफ वी चेक ऑल दी ऑप्शंस कि कौन से ऑप्शन में T2 5 टाइम्स T1 आ रहा है, तो यू विल सी दैट सी ऑप्शन में जो T2 है वो एग्जैक्टली 5 टाइम्स T1 है. तो इट कैन बी डायरेक्टली मैनेज्ड बाय जस्ट फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन T2 एंड T1. सो अगेन एन इजी क्वेश्चन, right? Fraunhofer diffraction pattern of a single slit is obtained in a focal plane of lens focal length 1. Third minimum is formed at the distance 5 mm from the central maxima, right? So we know that third minimum के लिए जो formula diffraction में होता है that is of course n lambda capital D by A, where A is the slit width. तो यहां से हमें A का वैल्यू निकालना है. n is 3 because I think third minimum की बात हो रही है, तो 3. lambda का वैल्यू we have 5000 into 10 to the power minus 10. कैपिटल D is 1 मीटर, वो डिस्टेंस स्क्रीन का 1 गिवन है, एंड दैट अपॉन y इज ऑफ कोर्स 5 mm, राइट. तो दिस इज 5 into 10 to the power minus 3. तो यहां से आपका a का वैल्यू जो आ रहा है दिस इज 10 to the power 3 and 6, तो 3 into 10 to the power minus 4 मीटर्स, और ऑप्शंस के हिसाब से चले तो दिस इज 0.03 सेंटीमीटर्स, राइट. तो ये आपका ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है. तो डिफ्रैक्शन पर बेस्ड एक बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था. नेक्स्ट, फॉर सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस y1 y2 y3 y4 वगैरह सब गिवन है, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट निकालना है, राइट. तो ऐसे केसेस में ये प्रोफाइल बहुत रूटीन है. इन्हें हम फेजर्स की तरह अगर ट्रीट करें तो इसका फाई अगर अपन देखें तो दिस इज 0, राइट. तो ये जो 8 cos ओमेगा t है इसको अपन एक फेजर की तरह बना सकते हैं, विच इज पॉइंटिंग हियर, इज 8. देन ये वाला जो है y2, ये फर्स्ट वाले से पाई बाय 2 रेडियन आगे है. तो पाई बाय 2 रेडियन मतलब 90 डिग्री आगे मैंने बनाया, इसका मैग्नीट्यूड इज 4. फिर y3 जो है वो y1 से 180 डिग्री आगे है, पाई फेज एंगल पे है, तो उसको हमने यहां पे बनाया, दिस इज कितना 2. एंड दिस फोर्थ वन ये फर्स्ट वाले से 3 पाई बाय 2 डिग्री पे है, मतलब 270 डिग्री डिफरेंस पे है, तो ये हमने यहां पे बना दिया, दिस इज 1. अब इनको हम नॉर्मल वेक्टर्स की तरह ट्रीट करें तो वी हैव 8 minus 2, हॉरिजॉन्टल में x में तो बचेगा केवल 6, और y में अपन देखें तो 4 minus 1, यहां पे बचेगा सिर्फ 3. तो उसके हिसाब से जो आपका रिजल्टेंट आएगा, दैट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी दिस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 9 इज अंडर रूट ऑफ 45, और tan थीटा जो यहां पे आएगा दैट विल बी द y अपॉन x 3/6, दैट्स 1/2. So under root 45 and tan inverse 1/2 will be the correct option. So again it's a routine profile जो waves में SHMs में applicable होती है whenever there is a superposition involved in that case. Next question. Carnot engine whose sink is at 300 Kelvin has efficiency given by how much temperature of the source be increased so as to increase the efficiency by 50%. All right. तो initial detail जो given है that 1 minus TC by TH, we are given it as efficiency as 0.4. So accordingly you have TC upon TH का value as 0.6. ठीक है, this is initial condition. Now efficiency को 50% से बढ़ाना है, तो पहले efficiency 0.4 थी, इसको 50% से बढ़ाएंगे तो नया efficiency जो आएगा, सिंक का टेम्परेचर तो वही है और सोर्स का हमने चेंज कर दिया तो TH डैश. अब 0.4 को 50% से बढ़ाओगे तो 0.6 हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली आपका TC अपॉन TH डैश जो है that becomes 0.4. तो यहां से हमें कैलकुलेट करना है
कि सोर्स का टेम्परेचर कितना अमाउंट से बदलना होगा, मतलब टी एच डैश माइनस टी एच हमें कैलकुलेट करना है। तो टी एच डैश इज दिस इज 300 केल्विन अपॉन 0.4 माइनस 300 केल्विन अपॉन 0.6। यहां से हमने वो वैल्यूज टी एच और टी एच डैश की निकाली हैं। तो अकॉर्डिंगली दिस comes out as, I think this is 750 and this is 500। तो ये आपका डिफरेंस जो आ रहा है वो 250 केल्विन का आ रहा है। सो अगेन एन इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन Carnot's engine। Next, a book of weight 20 newtons pressed between two hands and exerts a force 40 newton, right? तो अगर एक ब्लॉक हमने कंसिडर किया जिसमें दोनों तरफ से, अपने दोनों हैंड से हम इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं 40 न्यूटन दोनों तरफ से, तो हैंड और बुक में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा बिकॉज द बुक इज नॉट मूविंग। तो इस बुक पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना है दैट इज एन ऑफ कोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज बुक का इंपेंडिंग मोशन डाउनवर्ड्स है और उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हम वेट mg लगाएंगे दैट्स 20 न्यूटन। तो ये आपका फ्रिक्शन यहां पे fs ऊपर आ जाएगा, राइट। देन इफ द बुक जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन, तो लिमिटिंग केस में वी नो दैट जो mg होगा वो fs मैक्स से इक्वेट होना चाहिए। अब दोनों हैंड से अगर fs मैक्स लगेगा दैट्स ट्वाइस ऑफ fs मैक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज दोनों हैंड से लगना है। सो 20 एंड दैट इज इक्वल टू 2 into mu s n। fs max is mu s n, तो mu s into n, नॉर्मल रिएक्शन विल बी 40 न्यूटन बिकॉज हैंड से फोर्स 40 न्यूटन लगा है। तो यहां से mu s की वैल्यू जो आ रही है आई थिंक दैट कम्स आउट एज 1/4। तो 1/4 आया तो दिस इज 0.25। तो ये अपना 0.25 करेक्ट आंसर आ गया। तो अगेन फ्रिक्शन पे बेस्ड एक बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन ही था, नॉट दैट डिफिकल्ट। नेक्स्ट, a light emitting diode has a voltage drop of 2 volt across it and passes a current given when it operates with 6 volt battery through a limiting resistor R, right? खैर यहां एक नॉर्मल सर्किट के बारे में बात हो रही है कि आउट ऑफ दैट 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट में से 2 वोल्ट अगर एलईडी के अक्रॉस चला गया तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर विल बी दिस 4 वोल्ट, और इसको हम इक्वेट कर सकते हैं विद आई आर। तो यहां से आपका आर का वैल्यू आना है 4 अपॉन करंट, करंट हमें गिवन इन 10 मिली एम्पियर्स। तो आई थिंक दिस इज कमिंग आउट एज 4000 अपॉन 40, सॉरी 4000 अपॉन 10, so that's 400 ओम। That's a very very straightforward question, just अपन ने V equals to IR apply किया है। Next, all right, screw gauge। In a screw gauge, 5 complete rotations of the screw cause it to move a linear distance of 0.25, right? तो अगर 5 rotations में वो 0.25 मूव किया है तो एक रोटेशन में कितना मूव करेगा वही उसका पिच हो जाता है। तो एक रोटेशन में इट इज मूविंग ऑफ कोर्स 0.05 सेंटीमीटर, दैट्स अ पिच। There are 100 circular divisions, right? 100 circular division है तो अपन least count निकाल लें, that will be pitch upon number of divisions। तो this is 0.05 upon 100, ये आपका least count आ जाएगा। This is 5 into 10 to the power minus 4 centimeters, least count आ गया। अब हमें इसका रीडिंग लिखना है, तो रीडिंग अपन लिखें तो it says the thickness of the wire measured reading a 4 main scale division। 4 मेन स्केल डिवीजन है तो 4 इंटू 0.05, ये तो पिच से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो 30 इंटू लीस्ट काउंट, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये हो रहा है। दिस वैल्यू इट विल बी 0.2 प्लस 0.015, 3515 आ रहा है, तो दिस विल बी 0.215। अब ये जो वैल्यू है आपका, दिस इज ऑफ कोर्स इन सेंटीमीटर्स। I think this is 4, 5, 20, 20, this is 0.2, right? And this will be, all right, this is in centimeters, right? So accordingly आपका आंसर जो आएगा that will be 2.15 mm, right? तो उसके हिसाब से आंसर is 2.15 mm, right? तो easy question ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। A 3 kg object has initial velocity given, what will be the total work done, right? Velocity changes, तो वर्क डन हमें निकालना है। we know that वर्क डन जो होता है that is the change in kinetic energy, the work energy theorem। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें हम अप्लाई करें तो दैट इज हाफ m v फाइनल स्क्वायर। अब हमें फाइनल वेलोसिटी वेक्टर गिवन है तो अपन स्पीड निकाल लें एज 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, बट वो स्क्वायर होना है तो अंडर रूट हट जाएगा, माइनस इनिशियल स्पीड है 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, उसका भी स्क्वायर होना है बिकॉज दिस इज हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो दिस इज m इज 3/2, so this is 64 plus 16, so that's 80, minus 36 plus 4, that's 40,
तो ये अपन कैलकुलेट कर रहे हैं 40/2 is 20, 20 into 3 is 60. तो आपका वर्क डन जो आ रहा है दिस इज 60 joules. Alright students, so as you observed, पेपर वॉज क्वाइट ईजी. कुछ दो तीन क्वेश्चन ही थे जो जहां पे थोड़ा सा चैलेंज हमें लगेगा, बाकी अदरवाइज मोर और लेस द क्वेश्चंस वर क्वाइट रेगुलर एंड यू कैन स्कोर अराउंड 65-70 marks in this paper as per my analysis. Right students, so you keep working hard, you stay motivated, and as I always say, you can and you will. Thank you.